Am I audible clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us start today's session. Is this visible? Is the page of virtual lab is visible? Yes, sir. Okay. So here we can do now this 7th number. Design and verify 4-bit serial in parallel out shift registers. As we have seen the theoretical portion of this shift register, so we can go through it now. Let us click it on experiment number 7, which is design and verify the 4-bit serial in parallel out shift registers. Okay. I think some of you have gone through this. Anybody who has performed this on your system? Yes, sir. Okay. So here we have to analyze the circuit and truth table for 4-bit serial in parallel out, SIPO. Here SIPO means serial in parallel out shift register. Shift register by using IC 7474, which is the IC of D flip-flop, positive edge triggered D flip-flop. Okay, this IC is 7474 is this positive edge triggered D flip-flop. Okay, so let us go through the theory. I think it is visible to you all. The design and verification of 4-bit serial in parallel out shift register. Okay, so can anybody tell me that which type of flip-flop is this? Which type of flip-flop is this? It is a D flip-flop. Okay, so what is the property of D flip-flop? Uttam, you are not audible. You are not audible, Uttam. Yes, sir. You are not audible.
Okay, anybody else? What is D flip flop? सर जेके फ्लिप फ्लॉप में नॉट गेट लगा देते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप में इनपुट पे नॉट गेट, मतलब जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट अप्लाई करते हैं, है ना? हाँ सर। तो व्हाई इट इज नोन एज डी फ्लिप फ्लॉप? सर इसका प्रॉपर्टी होता है डी फ्लिप फ्लॉप के जैसा, इसलिए। डी फ्लिप फ्लॉप के जैसा प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए डी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ओके, और कोई कुछ बताओ, डी फ्लिप फ्लॉप क्यों बोलते हैं? डी फ्लिप फ्लॉप के जैसा प्रॉपर्टी होता है, तो डी फ्लिप फ्लॉप का कैसा प्रॉपर्टी होता है ये बताओ। सर उसमें इधर 1-0 और 0-1 इनपुट दे सकते हैं। ओके, तो क्या होता है 1-0 और 0-1? क्या डी में तो एक ही इनपुट है, तो इधर 0 देंगे या 1 देंगे? डी फ्लिप फ्लॉप में तो एक ही इनपुट है ना। हाँ सर। दो इनपुट तो है नहीं। तो व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी? क्या डी फ्लिप फ्लॉप क्यों बोलते हैं? डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट अप्लाई करते हैं, देयर इज ओनली वन इनपुट, डी इनपुट। देयर आर टू आउटपुट्स, Q and Q bar. So this D input may be either 0 or 1. There may be some clock. So based upon the input, when the input is 0, what will be the output? सर क्लॉक क्या अप्लाई कर रहे हैं, 0 या 1 से? ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? नेगेटिव पॉजिटिव सर। पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। तो इस फ्लिप फ्लॉप में चेंज के आउटपुट में तब चेंज आएगा जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा। तो हम कह रहे हैं कि कुछ आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज सम पॉजिटिव edge has come, and then we are talking about the output. Okay, so in the case when input is 0, what will be the output? 0 sir. 0. And when the input is 1, 1 sir। what will be the output? 1 sir. 1 sir। Output will be 1. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जब इनपुट 0 हो रहा है तो आउटपुट 0 आ रहा है, आउटपुट 1, इनपुट 1 हो रहा है तो आउटपुट 1 आ रहा है। So based upon this observation, how we can define a D flip flop? तो जो इनपुट में रहेगा वही आउटपुट देगा। Yes, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, बट ये इनपुट से आउटपुट आने में कुछ टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। there is a time consumption. हम इस सर्किट में इनपुट, वैसे तो जनरली क्या, किसी भी सर्किट में जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में एक टाइम लगता है, दैट इज नोन एज द प्रोपेगेशन डिले टाइम। है ना? तो ये जो प्रोपेगेशन डिले टाइम है वो कुछ भी हो, इनपुट देंगे, आउटपुट आने में देयर विल बी सम कंजम्पशन इन टाइम विल बी देयर। सो बट यहाँ पर एक चीज क्या है कि मतलब इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट आ रहा है, और इसमें भी जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। सो देयर इज अ डिले इन द आउटपुट without changing any output. So whatever the input we are giving, the same output we are getting at the output terminal at some delay.
So this is known as a delay flip-flop, D flip-flop. Okay, because of this delay produced without any change in the output, it is known as D flip-flop. So same input and output are there. So in D flip-flop, this is the case. Now here it is a, so from the picture, इस picture से क्या लग रहा है, ये कौन सा टाइप का शिफ्ट रजिस्टर है? राइट शिफ्ट रजिस्टर है या लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है? राइट शिफ्ट सर। राइट शिफ्ट रजिस्टर है। यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पर हम डेटा इन कहाँ से हो रहा है? डेटा इन हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डेटा इन लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। तो जब भी होगा क्या होगा, डाटा ट्रांसफर होगा लेफ्ट से राइट साइड में। ठीक है, Q1, Q2 और Q3 ये डाटा आउट लिखा हुआ है क्योंकि ये एक सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है। सो इफ इट हैज, यहाँ पर आप देख रहे हो कि डॉट 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 दिया हुआ है, इसका मतलब देयर आर n फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, there are n flip flops. So if we have 8 flip flops in this configuration, that is we are using 8 flip flops for making a 8-bit serial in parallel out right shift register. Okay, so for this case, how many clock periods are required to get the output? Yes, anybody? If we have 8 clock period. Okay, Bharat. Anybody else? इनपुट के लिए सर, आउटपुट के लिए फिर और 7 क्लॉक पीरियड लगेगा आउटपुट पूरा लेने के लिए। Okay, so which type of shift register is this? सीरियल इन सीरियल आउट। This is not serial Right shift. serial out. This is serial in parallel. ओके, पैरेलल आउट। Okay, so if this is a serial in parallel out shift register, then and if we have 8 flip flops, that is, it is an 8-bit serial in parallel out shift register. Then in this case, for this case, how many clock periods are required to get the output at the output terminal? सर 8 क्लॉक पीरियड। Okay, anybody else? 0. 0. So 1. Uttam 1. Okay. Anybody else? Sir, 1. Suman Kumari 1. Okay. मैं क्या पूछ रहा हूँ, how many clock periods are required to get output? तो आउटपुट आने के लिए पहले हमें यहाँ पे स्टोर भी तो करना पड़ेगा। एट फ्लिप फ्लॉप है, मीन्स हमारे पास 8 बिट डेटा है एंड इट इज अ सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो सीरियली इन होगा तो डेटा स्टोर होने में कितना टी स्टेट्स लगेगा? 8 सर। 8 क्लॉक। डेटा 8 क्लॉक पल्स होगा। डेटा स्टोर होने में 8 क्लॉक पल्स लगेगा। ओके, डेटा स्टोरेज के लिए या डेटा फीडिंग के लिए हम कह लें 8 क्लॉक पल्स लगेगा। अब डेटा आउट के लिए कितना टाइम लगेगा? सर 0 क्लॉक पल्स। और कोई बताओगे? 0 सर। उत्तम। ओके, और कोई बताओगे? जीरो क्लॉक पल्स लगेगा क्योंकि ये सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है। तो जब हम 8 क्लॉक अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ यानी कि सारे आउटपुट टर्मिनल्स पर हमें डाटा मिल जाएगा। अगर 8 फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर है तो 8 क्लॉक पीरियड में हमें हर एक टर्मिनल पर, आउटपुट टर्मिनल पर हमें आउटपुट दिखेगा। तो अब ऑलरेडी यहाँ पर आउटपुट जब सारे टर्मिनल्स पर दिख रहा है और पैरेलली आउटपुट करना है डेटा को, तो यहाँ पर क्या होगा दैट
we do not require any extra clock period to see the output, because at the output terminal already the outputs are there. Okay, so we do not need extra clock periods for showing the output at the output terminals. Okay, so a total of 8 clock periods will be required. Now, okay, so can I rub all these writings, whatever written here? Yes, sir. Okay, so here in this case, so you can go through the theoretical portion, whatever is written here. So here you can see that we already know that at the initial state, as you can see that all of the flip-flops are connected with a clear terminal. Okay, all of the flip-flops are connected with a clear terminal. So what it will do, what this clear terminal will do, सर सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करके 0 कर देगा. यस, सारे फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा उसको ये क्लियर कर देगा. ओके, Active low. यस, इट इज एन एक्टिव लो इनपुट इज दैट मीन्स, इसका मतलब है जब इसको 0 करेंगे तो ये सारा का सारा जो फ्लिप फ्लॉप्स है उसके आउटपुट पर 0 आ जाएगा. ठीक है, और हम डेटा जो इन करेंगे, दैट डेटा मान लें अगर हमारे पास 4 बिट डेटा है, 1100 एक 4 बिट डेटा है, तो हम सीरियली डेटा को इन करेंगे और एक एक करके डेटा बिट्स सबसे पहले LSB को फीड करेंगे, देन उसके बाद का और सबसे लास्ट में MSB को फीड करेंगे. सो दिस इज एन MSB फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज द LSB फ्लिप फ्लॉप. ओके, और यहाँ पर जो हमें मिलेगा QN, दिस इज द LSB बिट, दिस इज द MSB बिट. ओके, so this, I think these things, all of these things we have discussed in the theoretical class. So yes, you can see here that whatever we have seen there, it is written here that at each and every clock cycle different bits are coming. So at the first clock period B1 is coming, so at the output so after the first clock period, output of flip-flop 1 is Q1 and all other flip-flops are at 0. Okay, so subsequently as we will apply the different clock pulses, the data will get shifted. You can see here that this B1 came to this place and the second bit B2 is introduced at the output of Q1. Okay, so subsequently all the bits are get shifted. Okay, so this is the next there is an n bit serial in parallel out left shift register. So this is a left shift register and you can see that the data is introduced at the right side. Okay, तो डेटा जो है उसे राइट साइड में इंट्रोड्यूस किया गया. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब डेटा को यहाँ फीड कर रहे हैं तो राइट लेफ्ट शिफ्ट होगा और जो MSB डेटा बिट है वो यहाँ आएगा और LSB यहाँ आएगा. ठीक है, तो जस्ट डायरेक्शन को चेंज किया गया है और कुछ नहीं है. राइट साइड की जगह से हम लेफ्ट साइड से डेटा इन कर रहे हैं, डेटा फीड कर रहे हैं और डेटा लेफ्ट साइड शिफ्ट होकर इस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगा. ओके, you can go through the theoretical part. Next, okay, so we have to go through the, now there is a pre-test. There are some questions in the pre-test. Go through this. I think maybe 5 or 6 questions are there. Go through these questions. Okay, so please tell me that whether, okay, so what is the answer of first question? The register that can be used to provide data movements. शिफ्ट रजिस्टर सर. Shift register. It is a shift register. Next,
Question number 2. What is the answer of question number 2? A Sir, sir. A. Okay. Next. Next. Shifting a register content to left by one position is equivalent to what? C sir. C sir, multiplication by 2 sir. Multiplication by 2. तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट की जगह अगर राइट होता, लेफ्ट की जगह अगर राइट होता तो क्या होता? Multiplication by 2 sir. देखिए डेटा को जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, और डेटा को जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? Right में sir division by 2 है sir. उत्तम, तुम्हारे साइड से काफी नॉइज आ रही है। हाँ मैं मंदिर से उठा सर। तो पता चल रहा है मंदिर में हो, हरे राम हरे कृष्णा चल रहा है। ओके, सो नहीं सर, मंदिर में नहीं, मतलब मंदिर मेरे घर के सामने है सर। अच्छा, so next is to serially shift a nibble. What is mean by nibble? 4 bit data है। What is byte? 8 bit sir. 1 byte is equal to 8 bit, and 1 byte is equal to how many nibble? 2 nibble sir. 4 nibble sir। 4 nibble। ये 1 nibble में कितना बिट्स होता है? 4 1 nibble is equal to 4 bit। ओके, तो यहाँ 1 बाइट में अगर 8 बिट है तो 1 बाइट में कितने निबल होंगे? 2 होगा सर। 2 ही होगा ना। 2 है सर। हाँ सर। ओके, सो यहाँ पर दिया हुआ है टू सीरियली शिफ्ट अ निबल, मतलब 4 बिट्स डेटा। एक निबल लिखा गया, मींस देयर विल बी अ 4 बिट डेटा of data into shift register. There must be how many clock pulses? एक निबल डेटा को शिफ्ट करना है using shift register, so how many clock pulses are required? Sir, D number 1 clock pulse for each one in Sir, the 4 data. 4 clock pulses. To serially shift a nibble data into a shift register, there must be D number है 1 clock pulse for each one in the data, और एक आंसर आप लोग बोल रहे हो 4 clock pulses। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 1 clock pulse for each one in the data, यानी कि अगर डेटा में 1 होगा तो उसके लिए एक क्लॉक पल्स लगेगा, और अगर 0 होगा तो कोई क्लॉक पल्स नहीं लगेगा। इसका यही मतलब है लास्ट वाले ऑप्शन का। लास्ट वाला ऑप्शन किसने कहा था आंसर में? 1 clock pulse for each one in the data। तो डेटा में क्या सिर्फ 1 ही होगा? जो निबल ऑफ डेटा दिया गया है, मतलब 4 बिट का डेटा है, मान लें B3, B2, B1 और B0, ये 4 बिट का जो डेटा है, इस 4 बिट के डेटा में 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो वो या तो 1 हो या 0 हो, उसको शिफ्ट करने में
एक क्लॉक साइकिल लगेगा, वो 1 हो या 0 हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 के लिए लगेगा क्लॉक। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन उसमें लिखा हुआ 1 क्लॉक पल्स फॉर ईच वन इन द डेटा, तो सिर्फ 1 के लिए तो क्लॉक पल्स लगेगा नहीं, 0 के लिए भी लगेगा। सो द बेस्ट आंसर विल बी व्हाट? द बेस्ट आंसर विल बी B or D? C number. C. Okay. C. Next. What is mean by parallel load of a shift register? B number, sir. Each flip flop is loaded with data one at C a time. number. All flip flops are preset with data. C number, sir. Sorry. What is meant by parallel load of a shift register? Parallel load का मतलब क्या हुआ? All the flip flops are preset with data. None of the above. Each flip flop is loaded with data one at a time. Parallel load of shift register का मतलब तो यही होना चाहिए ना, I think parallel shifting of data. Okay, so all flip flops are preset with data. नहीं, I think क्या बोल रहे हो आप लोग? C होगा या नहीं होगा? सर A ही होगा सर, A होगा सर श्योर। C नहीं होगा। C क्यों नहीं होगा? सर उसमें पहले से डेटा प्रेजेंट नहीं रहता। Yes, अगर यहाँ लिखा रहता कि all the flip flops are loaded with a clock pulse, अगर clock pulse यहाँ पर भी मेंशन होता तो हो सकता था, मे भी ये होता, लेकिन यहाँ पर कहीं clock pulse की चर्चा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कहा गया कि all the flip flops are preset with data, तो I think ये C नहीं होना चाहिए। Okay, so let us go for A. Let us see. Second one is each flip flop is loaded with data one at a time. नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों सारे में 1 ही होगा। Okay, let us submit the quiz and check whether which one is okay. Last one is wrong. All the above solutions are right. Okay, so what is the answer of last one? So इसका आंसर तो यही दे रहा है भाई, all flip flops are preset with data. But I think this should not be the right. Preset with data तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबका डाटा प्रीसेट नहीं होना चाहिए। क्लॉक पल्स आने के बाद ही डेटा शिफ्ट होकर आउटपुट में जाएगा। ओके, व्हाटएवर इट मे बी, वी विल सी दैट। ओके, so I think procedure is more or less same. Okay, so here is one more input that keep the set and reset and preset as active high signals. Okay, so यहाँ पर reset और preset इनपुट भी दिया गया है, जहाँ पर these are active high, जैसा कि हमने preset और clear को active low लिया था, बट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि these are active high signals. Okay. Apply the data at the data input. Okay, so press clock pulse and observe the data at LED. Okay, next is then add button to add data in the given truth table. Apply the next data at the data input. Press clock pulse and observe that the data at LED Q3 will shift to LED Q2, and the new data will applied. The new data applied will appear at Q3. Okay. Repeat steps 3 to 5 till all 4 bits appear at the output of shift register. Okay. So press print button. Same thing. Now let us go to the simulation. Okay. So
here we can see and two ICs of IC 7474, where this IC contains two D flip-flops, okay, with the preset and reset signals. Reset inputs are there, and okay, so the very first step is to connect the battery, that is connect the supply with the IC. So let us click at the battery symbol of battery. हमने यहाँ पे इसे connect किया. Now it is given as connected. यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि R1 जो है पिन नंबर R1, that is pin number 1 is R1, that is reset pin. D1 pin number 2 is the input pin, and pin number 12 is the input pin. You can see that the input pins are pin number 2 and pin number 12, okay, and outputs are at Q and Q bar, that is Q at pin number 5 and Q bar at pin number 6, okay. Reset and preset button. Preset button is at preset input at pin number 10 and pin number 4, okay. So for flip-flop, first flip-flop it is pin number 4, and for second flip-flop it is pin number 10, okay. So you should know all these things. यहाँ पर लिखा हुआ है, but आप जब IC लोगे तो IC में कुछ लिखा नहीं होता है that ये reset button है, ये preset button है, ये clock pin है, या output pin है, या input pin है, okay. So you have to know that, you have to remember that. So data input हम करते हैं यहाँ पर. डेटा इनपुट जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है कौन से पिन से? पिन नंबर 2 से, विच इज द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप 1, दैट इज डी ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. लेट मी नोट इट. दिस इज द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, दिस इज द सेकंड फ्लिप फ्लॉप, ओके. सो इन द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप वी आर ओनली अप्लाइंग द डेटा इनपुट. और डेटा क्या पहले फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कनेक्शन कहाँ दिया हुआ है? Yes, you can see that the output of flip-flop 1 is this one. I am marking it with red color. Okay, यहाँ पर आउटपुट पिन नंबर 5 पर आ रहा है, और ये जो Q1 है देखो कहाँ से कनेक्टेड है. ये यहाँ से ऐसा गया, यहाँ कनेक्टेड है. और ये किससे कनेक्टेड है? ये कहाँ कनेक्टेड है देखो आप, डी के इनपुट पर, है ना. तो हमने पहले ही देखा था क्या कि अगर हम पैरेलल शिफ्ट राइट शिफ्ट रजिस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो डी इनपुट है पहले वाले का और इसका जो क्यू आउटपुट है, दिस क्यू आउटपुट इज कनेक्टेड विद द डी इनपुट ऑफ second flip flop, okay. The same thing is given here. You can see that I have drawn with the red color, okay. So the output of flip flop 1 is connected with the input of second flip flop. Are you able to see this? Yes, sir. Yes, sir. है ना. और इस तरीके से हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा अभी Q2 का, सॉरी आउटपुट जो फ्लिप फ्लॉप 2 का आएगा वो देखोगे फ्लिप फ्लॉप 3 के इनपुट में गया हुआ. लेट अस ड्रॉ इट. सो यहाँ से आउटपुट आ रहा है फ्लिप फ्लॉप 2 का, और ये कहाँ गया है? Isn't it? Okay. अब जो फ्लिप फ्लॉप 3 का आउटपुट है वो जाएगा फ्लिप फ्लॉप 4 के इनपुट में. Q है, ओके. सो इन दिस वे जो हमने सर्किट देखा है एक्चुअल में वही सर्किट है.
बस चूंकि पिन्स जो कौन सा पिन कौन से इनपुट पर है वो देखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वायर लेकर कनेक्शन करना होगा। ठीक है, आप अगर इसे ब्रेडबोर्ड में करोगे तो आपको ये कनेक्शन करना पड़ेगा। मतलब एक तो कनेक्शन यहाँ पिन नंबर्स पर दिया हुआ है, पिन पे कौन से पिन पे आउटपुट है वो हमें पता करना होगा, और बेस्ड ऑन दैट वायर के थ्रू दूसरे वाले के इनपुट तक पहुंचाना होगा, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पिन तक पहुंचाना होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको पिन नंबर मालूम होना चाहिए और कौन से पिन नंबर पर क्या इनपुट और आउटपुट है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ये आउटपुट यहाँ पर आएगा और यहाँ से हम लास्ट वाला आउटपुट जो ये बिट है वो हम आउटपुट लेंगे। ठीक, और यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो आउटपुट कनेक्टेड है, ये आउटपुट कहाँ से कनेक्टेड है। ओके, लेट मी चेंज द कलर, लेट अस टेक ब्लू कलर विथ सम ब्रॉडर लाइन्स। आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो आउटपुट कनेक्टेड है, ये आउटपुट कनेक्टेड है किससे, ये आउटपुट यहाँ आया, यहाँ आया, ये कनेक्टेड है एलईडी से, है ना। यहाँ देख रहे हो ये एलईडी से कनेक्टेड है, और हर एक जो आउटपुट है वो एक एक एलईडी से कनेक्टेड होगा। लेट अस सी दैट। यहाँ देखो ये जो Q3 मतलब फ्लिप फ्लॉप 3 का जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है यहाँ इस एलईडी से। ओके, और Q जो आउटपुट है वो भी देखोगे कहीं कनेक्टेड होगा, क्या वो कनेक्टेड है। Q जो आउटपुट है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ से ये आया, ये देखो यहाँ से ये आया, है ना। तो जो भी आउटपुट है वो एक एक एलईडी से कनेक्टेड है। आप यहाँ देखोगे नेक्स्ट, ये कहाँ है, ये एक्चुअली क्या है, ये आउटपुट ही है इसका, ये जो है ये आउटपुट ही है। ओके, तो इस तरीके से कनेक्शन आपको वायर से करना पड़ेगा। जब आप ब्रेडबोर्ड में फिजिकली करोगे तो आपको वायर से ही कनेक्शन करना होगा, एलईडी लगाना होगा, रजिस्टर लगाना होगा, है ना। और जो भी आप यहाँ पर इनपुट दोगे। ओके, सो द टाइम विल ओवर नाउ, सो ऑल ऑफ यू विल रीजॉइन अगेन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्लॉक अप्लाई करेंगे। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक हमने, ओके, सो क्लॉक अप्लाई करेंगे, बट उसके पहले हमें डेटा इनपुट देना पड़ेगा। डेटा इनपुट हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे डेटा इनपुट स्विच ऑन कर दिया, मीन्स 1 जो डेटा है वो यहाँ आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम जो डेटा इनपुट कर रहे हैं वो हम 1011 इनपुट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पहला जो डेटा दिया वो 1 दिया है। नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए अगर हम 0 देना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसे ऑफ कर देंगे तो 0 डेटा आएगा, फिर ऑन करेंगे 1 डाटा आएगा, फिर ऑफ करेंगे 0 डेटा आएगा, फिर ऑन करेंगे 1 डेटा आएगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में फिर ऑन रखेंगे तो